not audible. Extremely sorry. Apologies. Hi all. Good evening, all of you. Am I audible? Am I audible to all of you? Yeah. Yes, sir. Great. Thanks for attending this session. So this will be a more or less, I would try to make this session an interactive. And I suppose most of the candidates who are attending are generally either they have given the first attempt or they are new to the preparation. So is it right? Like, can I get any responses from your end? So that, I can just be, yeah. Yes, Yeah, sir. First attempt 2022. Okay, first attempt 2022. Okay, so are most of the people first attempter, or yeah, anyone can, like, so I can just introduce the essay in such a way that you can actually get the knack, like what I'm trying to say. Because if you're at an advanced stage, then I can actually have even that kind of conversation on essay. Okay, first attempt. Okay. Okay, so I'm getting few response. Sorry. Okay. Okay. What I will do is basically, yeah, thank you, Ankuran. Okay, first attempt. Okay, okay, thank you. So what I will do is, I will try to get this conversation, session in a more from a beginner's point of view, as well as from intermediate point of view, as well as people who have not been successful basically in able to score good marks consistently in essay. Over there, actually, I will be more or less, I will make this session more holistic. So you will actually get a fair idea, what is actually happening in this way. And you can please raise the question even when I'm having a conversation, so that you don't miss the point. And wherever you feel that you are not able to grasp what I'm trying to convey, you can always ask a question and raise a hand. No issues. I will just answer it. Please feel free to do that, so that we can have more engrossing session without without any hesitation, and so that will actually you can make the most out of it. Because essays, I generally feel essay is more or less more based on knack of writing, and the way the essay have been the essay paper have been coming from since last 2018, I would say 18, 19. 19 was a drastic change in the trend. So if you see the previous essays, I would say 2014, 15, 16, when the pattern changed in 2013. So essays were more or less, a factual kind of thing you could write. They were very simple statement. And so you were able to actually make a decent essay out of that. There was not needed, there was no need of such kind of interpretations. But what happened from 18 onwards was that, a philosophical kind of flair started coming up. And in 19, you see the first thing. So I'm just sharing my screen. What actually happened in 19, and okay, I'm just sharing the screen, so you will be able to actually see what essays came in 19. And just wait for a minute. Your entire screen. Okay. Okay, sure. So, okay, I hope you are able to see my screen for 19. Okay, is my screen visible? Hello, guys. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yes, okay. Yes, sir. Yes. Okay, so this is the thing I'm going for 2019. Yeah, so now, so you see the whole thing over here in this first one is like, they are more or less a philosophical essay. Wisdom finds truth. Values are not what humanity is, but what humanity ought to be. Best for an individual is not necessarily best for the society. Courage to accept and dedication to improve are two keys to success. And now here you see a change. So you take this whole as a philosophical essay, and this one
where more or less based on the diverse knowledge which you acquired during the UPSC preparation. Uh, so, so now if I go for the second one, here is South Asian societies are women not around the state. So you need to have, certain knowledge about South Asian societies. Neglect of primary health care. Okay, again, here you need to have knowledge with respect to numbers, data, whatever you have. Biased media is a real threat. Okay, this is again, there was like controversy going on that year. Rise of artificial intelligence. This is the essay which I attempted. And over here in the philosophical, I attended this one, courage to accept and dedication to improve. So I attempted this one and I attempted this one. So eighth one and the fourth one and the eighth one, I attempted the two essay. Now I go back to essay 2020. Now this is again the same pattern I see. These are all philosophical essays. And over here, I see from fifth to eight, again, more or less, I would not say directly fact-based essay, which we got last year, but you can actually use fact and the existing knowledge to write them. You don't need, but here also the interpretation actually had a quite good role. If you select, this was the essay I write, there can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. This was the thing I wrote. And over here, I wrote, life is long journey between being human being and being human. And I have been rewarded very generously in the both of the papers which I've written. So, what I will do is I will just tell you that. So eventually, but understanding, yeah. So if you have any questions, please, please ask. No issues. Yeah, any question from your end? So, I can just answer them right now. Please don't be hesitant. Okay. Okay. So I guess we are good to go. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. Great. Yeah. So what I will do is, so basically, before approaching an essay, we should be able to know basically what UPSC required for an essay. And I have been very, very ardent devotee of, reading the notifications of UPSC, especially for prelims, for mains, and for essay, even for interview. So they tell that it is more of a personality test. It's not an interview. So here you find, they say that candidates may be required to write essay on multiple topics. Okay. And they will be expected to keep closely to the subject of the essay. Okay, that's the very important thing. They will be expected to keep closely to the subject of the essay. And I will tell you where I have used this technique. Then to arrange their ideas in orderly fashion. That's one, again, good word. The whole sentence. To write concisely. Again, a very important point. Credit will be given for effective and exact expression. Now, UPSC has clearly mentioned, what they are expecting from a candidate for an essay. To keep closely to the subject. Second, orderly fashion, ideas in an orderly fashion. Conciseness, orderliness, conciseness, and effective and exact expression. And so with this, I would, so please read this. And whenever you think, why you're not getting good score in essay anytime, or you're not able to reach that level of essay of more than 140 plus or 135 plus, whatever. Here you got the whole glimpse. And I personally feel, I told Shubham this time, when he was actually giving his exam, that, you have to basically understand that, without, you just don't have to give this much amount of time with respect to getting good score in essay, because he was stagnant at a certain score. So this year his score has increased by 15 marks. So now this will be a huge change for him in terms of cadre allocation. Earlier he was like more or less just, he anyone got IPS, but with 15 marks, he would get more better cadre. And surprisingly, many people ignore essay. And I do not know why, when it is the most scoring subject, I would consider essay as a subject, totally a different subject.
And that helps totally in GS4, in your optional paper 2. If you are in humanities, if you are in philosophy, I had philosophy as one of my optional. So that actually helps you, in actually giving better scores. And having a knack over essay also allows you to, write in the exam. I mean to say, so you're stuck somewhere. But if you have made a flow in your brain, if that flow of essay has been imprinted on your brain, it is just like you will be writing, if you are stuck somewhere, still your brain will be running with some content flowing onto the paper. At least you will be not be totally blank about the things if you have actually practiced good essays. So on this note, I would actually share some of my strategy, which has consistently helped me, my friends, who have got ranks. So there was one this case, I wouldn't disclose the name. His this year rank was in top 100. So I get a message around 3 days before the paper that he has not prepared well for the essay, but he had somewhat good knack for writing. So we had a very detailed explanation that what we expect from the essay and what you should write, and what should be the content strategy coming in the next 3 days. And we had a discussion like, okay, he's going to sit for 12 hours per single day, so that he gets to the core of the topic, he understands the topic. So more or less, I would be focusing on what UPSC wants about the essay, what I did personally, because I personally believe putting my skin in the game. I mean to say, I personally like to I have given this session because I've consistently scored it. If I wouldn't have been giving this session. So I put my skin in the game and I've scored consistently. So I think, I'm the most right person to actually tell you at this moment of time, what actually is happening in terms of essays. In 2019 essay, I actually goofed up in the second part of the essay. It was about rise of artificial intelligence, and I forgot to write the first part. So the essay topic over here was, I guess, this one. Yeah, so I wrote this essay on rise of artificial intelligence, the threat of jobless future or better job opportunity through reskilling and upskilling. And surprisingly, I forgot to write about reskilling and upskilling. So that part completely went missed. So, so I generally try to avoid this, and I do not know why did it happen, in spite of me being writing. And generally, I write a freehand essay. My most essay are contemporary. So, so I don't basically create any framework. So for me, everyone says create a framework, you have to write certain dimensions and this and that. I don't do that, anything. I just go and start writing my ideas very fluidly. Maybe I have that knack of writing, or maybe I have developed that knack of writing. And generally, I feel I have developed that knack of writing. So generally, you just have to see in a way that, the essay is actually, I'm telling you, you can easily score between 140 to 145 plus. I have no doubt on that. If you just follow certain right strategy, right mentorship, and able to actually understand, how the essay is flowing of yours. If you are writing an essay, तो क्या होता है ना कि बहुत बार you start writing an essay और पहला पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से कनेक्ट नहीं करता है, and okay, so there is complete disconnect for the reader जो पढ़ रहा है, जो पेपर पढ़ रहा है, उसे इंटरेस्टिंग तो लग ही नहीं रहा, more or less. तो ऐसे कुछ चीजें अगर हम वो चीजों का ख्याल रखेंगे तो I don't think you will be scoring anyway below 130. मतलब I have no doubt on that. Even if you are bad, you can come to that level. I have seen some of my students have come from 106 to around 135, 140. So I have, okay, how much handwriting? Okay, so I have one question from Manjit, and he says, how much handwriting matter in an essay? I generally feel, so I have two views on this. So I have seen people in All India rank below 30 who had a very bad handwriting, but still scored good in essay. While at the same time, I have seen people who have very good handwriting and who wrote much more, I would say, not that kind of good essay, but still scored good marks. But always good handwriting, anything that is a beauty gets appreciation. So somewhere, yeah, you may get an appreciation of 5 marks, 7 marks. I personally feel that's my personal, because my handwriting was not that good, but it was not that bad too. It was very legible. If you could see, if you see my essay,
it is very legible. My handwriting is very legible. So that shouldn't be an issue at all. Thanks, Manjit, for the question. Any question, guys, before I proceed further? Because, it's just from my perspective I'm talking about. So please do let me know, like anything which Sir, you need sir, to. I have a question. Yeah. So how to structure a good essay? Yeah. Okay. That I will be covering up. Yeah, I will be covering up, Milind, now in the presentation. Okay. I scored 131 this year. Can I improve to 150? Will test series help? Okay. Raja, I would comment. Okay. So how to start the writing? Yeah, that I will be connecting. How to connect? Okay. I will be connecting that. Okay. Any more question? Okay, so I will go question by question, and he has told that he has scored around 131 this year. Can I improve to 150? Will test series help? Honestly, Raja, I personally feel you are. I have not seen your essays, first of all. If that has been your consistent score in the previous exams too, so I can assure you that it is actually now, to get to 140 plus, you required some kind of luck also. Uh, and I had some very, very good introductions. I just can tell you. I write hymns of Rig Veda, basically, into the introduction of essay. So honestly, I had very good introductions. So I cannot tell you that, because at 131, what happens is that you have hit a plateau somewhere. And to come above that plateau, honestly, it's very tough, because, what happens is like 5 to 10 marks depends somewhere on the mood of an, even from the point of an exam evaluator. But yeah, you can score between 135 to 140. Getting to that next 9 marks, I think, yeah, you can go that. That shouldn't be a problem. Getting to around 140, that should be possible. Because if you're, I'm just considering that you have scored 130 plus consistently, as I had scored like 140 plus consistently. So if you have scored 130 plus consistently, then only this is for you. If you have not, then there's no guarantee, because this will be just a fluke of luck, or this time you just got hit right. So if that is the case, so yeah. How to start writing? Yeah, Suraj, I will be mentioning that. How to connect paras? Yes, I will be doing that. How much handwriting matter? I already. Okay, Manjit has again asked one question: how to prepare philosophical essays? Okay, I will be taking all the questions. Okay, so I will just, yeah. So I will be just be, presenting my screen. Okay. Yeah. So just wait for a minute, and I want to share this one. Okay, I want to make it actually full screen. Yeah. Okay. So I would just emphasize on the demand of the UPSC paper, foreign UPSC paper, because please, guys, you have to be very careful, because so I write my own technical blog also. So in the technology space. So what happens is that over there the expectations are very different. Outside UPSC. In UPSC, the expectations are very different from an essay point of view. I mean to say, they don't want you to stretch an essay. They don't want you to basically have anything abrupt. Even anything you act, abruptly will be penalized. So UPSC has given very clearly, and we will be very sticking to that part of the thing of that essay. We will not divulge from what has been told by UPSC. This is very clear from my end. And every of your essay has to be in that fashion. And generally, essay, if you see, has to have that order, have to that conciseness or connectedness. But UPSC looks something more also, like I would say they don't want to stretch one point a lot. So that happens because if you start stretching a point, somewhere the evaluator gets bored while checking an essay. You may score like around 125 to 130. But still, having a multi-dimensional essay always gives you upper edge. I have no doubt. And try to mention dimensions, and I will tell you what dimensions I did use. So you will be very surprised. So I have read this book called Homo Sapiens by Noel Harari. Please don't read it. Please do not read it, because everyone is getting misguided in this whole preparation. You will waste your time. So just ask me before do anything, because your personality may be very different.
My background is very different. I'm from a tech background. I read a lot. I have more exposure to the things. I write a lot. So please, guys, please do not, get misguided. I'm just telling you what I did. Okay. And as per your own personality, we will have a different strategy, very single strategy for every one of you, because you all are unique. So we won't go, see, I do not have to even write dimensions on the paper. I start my essay without brainstorming sometimes. Honestly, I'm telling you guys. So for me, it's a very different game. So please do not go by, what I am doing. You are unique and you will score. You will get a rank. I have no doubt on that. Every one of you has that potential, but you are unique. Just consider that. And not to divulge from, what any topper is saying or anyone who has getting good marks in essay is saying, because we'll have to churn out a separate strategy for each of you. Which essays are very suitable for you. So Shubham was not able to score into essays because of certain strategic mistake. So we had to define a very different strategy for him. So it will be the same for you guys too. So 2019 essay, this was my introduction, awesome introduction. I write a very, very awesome introduction. And you won't believe what introduction I wrote in 2019 essay. And I goofed up the second part of the essay, second essay. You have to remember that. In spite of that, I've scored 140 plus. I have really goofed up the second part, second essay in the second part. So what I did basically, so I will just show you and let us go back to that. I hope you guys are able to understand what I'm trying to convey. Am I right, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So what I Yes, sir. did, yeah, thank you, all of you. So what I did, this is very interesting thing. I goofed up the second part, and I knew, मतलब मेरा क्या होता है कि जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना, मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि मेरा फ्लो कहाँ पे जा रहा है. वो आ जाता है जब आप बहुत सारे एसेस लिखते रहते हो ना, तो आपका ना ऑटोमेटिक माइंड कॉन्शियस हो जाता है, मेरा फ्लो कैसे जा रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं टॉपिक के कितने करीब हूँ. अगर हमने कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई की होगी तो गारंटेड, मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई भी बंदा कोई भी लेवल पे हो, I have that, guarantee that I can bring that guy to a good level. I have no doubt on that, because I have been somewhere where you guys, where some of you guys might be, and I have been able to bring to a very good level. I have walked a very good level to that, where I am able to score 144 plus. So I can guarantee you that my strategy work, and why it will work, that will also I will tell you. I won't tell you that it will work, but why it will work. So I again go back to UPSC and I see that, okay, on multiple topics, right? So they will be expected to keep closely to the subject of the essay. Okay. But so whenever I start an essay, I read a lot. I read a lot on Quora. I have read a lot of books since childhood. But at the same time, just wait for a minute, guys. I need to admit somewhere. Okay. Yeah. So at the same time, guys, I have been very fortunate that I could develop my writing skill when I actually started preparing for UPSC. Very fortunate. So before that also I was reading. मैं बहुत पढ़ता था, but लिखने की, art of writing आया नहीं था मुझे. When I came into UPSC, मुझे लगता है, और मेरा philosophy भी optional था, तो मुझे तब art of writing पता चला कि यार कैसे लिखना है, कैसे कोई भी चीज को कनेक्ट करना है. तो वो मैंने यूपीएससी में डेवलप किया, मैंने बाहर डेवलप नहीं किया. सिर्फ इतना था, मैं पढ़ता था पहले से, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था चीजों को. सो आई थिंक यू आर गेटिंग. सो व्हाट आई डू इज आई राइट वेरी वेरी ऑसम इंट्रोडक्शन, एंड माय इंट्रोडक्शन में तुम्हें बताता हूँ क्या था. सो टेक दिस पार्ट ऑफ द एसे. आई एम ओवर हियर एंड आई विल गो टू एसे 19. तो एसे था करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस. ओके. अब मैंने इसको थ्रिलिंग स्टोरी बनाई, मतलब गेस करने दिया एग्जामिनर को. मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास स्टोरी रेडी थी, क्योंकि मुझे वो याद आ गई. लकीली ऐसा बहुत बार होता है कि आप है ना वहां पे जाते हो और फिर आपको पता चलता है, अरे हाँ ये मैं लिख सकता हूँ या ये स्टोरी में लिख सकता हूँ, व्हाटएवर. तो मुझे वो उस समय याद आ गया और लकीली मैंने वो ऐसे में बहुत अच्छे से लिख पाया. तो बेसिकली मैंने स्टोरी डाली पनीनी की. तो मैंने शुरुआत ऐसे की. Around mid-5th century BC, father and his friend was having a discussion at a house with an astrologer. Astrologer said to the father, this guy, your son will not be able to make a good, good name for himself. The person was himself a very renowned
academician of that time in northern India. The boy looked up at the astrologer. He went outside, took a rock, cut his palm, and the blood started flowing. Everyone was taken by surprise. Then the boy came in and he said, "Now I have changed my destiny." He was an astrologer. Astrologer की वो story थी. The boy was named Panini, and he became one of the biggest Sanskrit grammarian in the human history. अब इमेजिन करो, मैंने उससे पहले सिर्फ गेसिंग करनी थी कि स्टोरी क्या है, उसे नहीं पता, वो बस एंग्रॉस्ड हो गया. और मैं बताता हूं, ये जब इंट्रो लिखा, इंट्रो के पहले लाइन में गलती हो गई. आप इमेजिन करो, पेपर आप लिख रहे हो, आप इंट्रो डाल रहे हो, इंट्रो की पहले लाइन में मैंने कट मारा है. आई एम स्टिल टेलिंग यू, स्टिल आई हैव बीन एबल टू स्कोर 140 प्लस. तो जो पढ़ते ना वहां पे, वो सही में ऐसे पढ़ते हैं आपके. मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो और ऐसे पढ़ा नहीं जा रहा, ऐसा कभी नहीं होता. वो सही में आपके ऐसे पढ़ते. तो देन आई वाज लाइक शॉक्ड. मुझे भी अब तो मैंने गलती कर दी है, बट मुझे पता था कि मेरा इंट्रो बहुत अच्छा है, तो मैं थोड़ा कूल था, क्योंकि इसके पहले भी दिए तो पता था कि यार हाँ यार 140 प्लस में आ जाएंगे अगर मैं दिमाग लगाऊंगा. तो बेसिकली यू नो, तो देन आई जस्ट वेट, आई एम डूइंग दिस फुल स्क्रीन. या ओके, आई एम नॉट एबल टू. ओके, सो तो बेसिकली ये मैंने ऐसा शुरुआत किया. अब इसका जो सेकंड ऐसे, मैं बोलता हूँ बहुत ऑसम इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, बहुत ही ऑसम. अब ये ऐसे को मैंने ना एंटीसिपेशन नहीं रखा, एग्जामिनर को मैंने एंटीसिपेशन में नहीं रखा कि ओके अब क्या आने वाला है, नहीं. मैंने डाला ये एक्चुअली एक मैंने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि एक कॉकरोच फैक्ट्री है वेस्टर्न चाइना में, वेस्टर्न या ईस्टर्न चाइना में, मैं भूल रहा हूँ अभी. और मैंने मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बट मेरा ऐसे इतना अच्छा है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ. मैं जैसे वहां पे कॉन्टेम्पोररी ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे ही आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ. मैं एक बहुत नेचुरल, विदाउट प्रिपरेशन, सिर्फ मैंने वो स्लाइड ही बनाई है आपके लिए ऐसे के लिए, बिकॉज मुझे बहुत अपने नेचुरल फ्लो से जाना था जब मैं सेशन ले रहा हूँ. बिकॉज दैट इज हाउ एसेज आर वेरी नेचुरल, नेचुरली आना चाहिए, मजा आना चाहिए लिखते समय ऐसे, तो गारंटेड नंबर आते हैं, गारंटेड. तो बेसिकली मैंने डाला कि एक फैक्ट्री है ईस्टर्न चाइना में जहां पे कॉकरोच का प्रोडक्शन होता है. और ये जो कॉकरोच बनते हैं, इनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. और वहां पे अराउंड हर साल 2 बिलियन कॉकरोच का प्रोडक्शन होता है. देयर आर 2 बिलियन प्रोडक्शन ऑफ कॉकरोच व्हिच हैपेंस. ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज देयर आर द यूज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग हैज बीन यूज्ड कंसिस्टेंटली to monitor the health of the cockroach, their breeding rate, whatever. मैंने ऐसे स्टार्ट किया एक कॉकरोच फैक्ट्री को. आप इमेजिन करो, मेरे दोनों इंट्रोडक्शन इतने, मतलब मैं मानता हूं मैं औसम थे. अगर नंबर आए तो कुछ तो होगा, मैं मानता हूं सही में मेरे यूनिक इंट्रोडक्शन थे. मैंने बहुत जनों को पूछा उन्होंने कैसा लिखा, तो मुझे तब पता चला कि मेरे बहुत यूनिक इंट्रोडक्शन, मेरा कोई गवर्नमेंट स्कीम से लेना देना नहीं, मेरा किसी से भी लेना देना नहीं. उसने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तभी उसको पता होगा द मोस्ट यूनिक इंट्रोडक्शन ही हैज रेड इन दैट. तो बेसिकली यू नो मेरे इंट्रोडक्शन बहुत ऑसम होते हैं. एंड वंस द इंट्रोडक्शन इज ऑसम, अब मैं ये इंट्रोडक्शन ऑसम क्यों बोलता हूँ आपको कि क्यों इंट्रोडक्शन ऑसम रहने ही चाहिए आपके, इसका पूरा कारण जाता है. जस्ट वेट, मुझे मिनिमाइज करना होगा बेसिकली, आई डोंट नो इसको कैसे करूँ. जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस. ओके, आई विल. ओके, आ गया यहाँ. तो मेरे जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे है. मेरी पैरेटो स्ट्रेटेजी यूज करता हूं. तो पैरेटो प्रिंसिपल है, ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा. मेरी प्रीलिम्स मैंने जब भी क्रैक की, और जब भी मतलब प्रीलिम्स तो बाद में ऐसा होता है कि राइट हैंड का गेम हो गया था. 2020, 2019 कोई भी बोलो, मतलब तो कोई इशू ही नहीं था मुझे वहां पे. और तो बेसिकली, और मेरे स्कोर जनरल कैटेगरी के काफी ऊपर रहते थे, तो वो भी कोई क्या 20% है which affects your 80% of life. तो मैंने वो प्रिंसिपल यहाँ पे डाला. क्या 20% है जो मेरे स्कोर को हाई इंपैक्ट करने से रोक सकते हैं? What is that 20%? I have to find that 20%, or that 20% leads me to
my awesome introduction. I knew that if I wouldn't go to this part, awesome introduction, that has to come with my Pareto strategy. तो मेरा सबसे बड़ा जो मेन यहाँ पे रहता है कि मैं awesome introduction लिखूं, क्योंकि मेरे वो Pareto strategy में सबसे टॉप पे रहता है. 20% इफेक्ट है जो मुझे शायद से 60% या 70% अच्छे स्कोर लाने में मदद कर सकता है. So this is what I have done consistently. अब तो Pareto strategy में पहला हुआ awesome introduction. ओके, तो दूसरा क्या है? 20% कुछ तो चीज होगी जो मेरे ऐसे में जो मुझे कंसिस्टेंटली ये करती है. वाया नेगेटिव अप्रोच. मैं बहुत मेंटल मॉडल यूज करता हूँ. तो प्लीज गाइज, मतलब कंफ्यूज मत होना, अरे यार हाँ इसने तो इतना सारा पढ़ा है तो इसलिए इसके नंबर आ रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डेवलप हो जाता है अगर आपके पास राइट मेंटोर हो. और शुभम जैसा हो तो बहुत ही जबरदस्त. जीएस में तो मतलब बहुत ही अच्छा उनका ये कमांड है. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपने राइट स्ट्रेटेजी फॉलो की, राइट मेंटरशिप फॉलो की और राइट इवैल्यूएशन करते रहे, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहे, आपके स्कोर ऊपर जाने ही है, मुझे कोई डाउट नहीं है. तो जो लक का फैक्टर यूपीएससी में वो काफी नीचे आ जाता है, लाइक बाय 90% कम हो जाता है. 5-10% हो सकता है, बट वो भी आप राइटिंग स्किल करके ये करके वो लक का फैक्टर नीचे ला सकते हो सिलेक्शन के लिए. तो यू नो, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट इंट्रोडक्शन, तो मेरी जो पैरेटो स्ट्रेटेजी थी वो वेरी वेरी क्लियर थी कि मुझे 20% क्या क्या है. तो 20% में क्या क्या आता है, व्हाट कम्स इन दैट 20%, you know, what is there in that 20%. Okay, that 20%. Okay, and I put a question mark. Just wait, I need to admit student. Okay, admit. Okay, तो 20% में क्या क्या आता है? तो 20% में आपका आता है, just wait for a minute. Okay, slide. Okay, what is there in that 20%? Awesome introduction, जो मैंने आपको बताया, पहला इंट्रोडक्शन पनिनी का, बहुत एंटिसिपेटरी, थ्रिल क्रिएट किया और बीच में से शुरू किया. एंटिसिपेशन आप कैसे शुरू करते हो? एक थ्रिलिंग मूवी है, कोई मूवी है, बहुत थ्रिलर मूवी है, तो आप बेसिकली क्या करते हो उधर? थ्रिलर मूवी में कभी कभी एंड तक पता चलता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, या एंड तक पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है. तो मैंने उसे गेसिंग करते रहा, मैंने उसे गेसिंग करने दिया कि ओके गेस करते रहो, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं. तो मैं ये मेरे 20% में लाता हूं कि मैं ना ऑसम इंट्रोडक्शन क्रिएट करता हूं, बहुत मेरे एंटिसिपेशन क्रिएट करता हूं मैं. तो ये मैंने यूज किया यहाँ पे 2019 का ऐसे की बात करो, पहले ऐसे की बात, ऐसे 1 टॉपिक 1 ऐसे टॉपिक 1. और जो सेकेंड ऐसे था 2019 ऐसे टॉपिक 2, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. तो उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने उसको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो शायद से वो कोई पढ़े ना, कॉकरोच वाली. अब इसमें क्या होता है, जब आप लिखते रहते हो कंसिस्टेंटली, तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कनेक्ट करने की. आप सोचोगे यार इतना मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो ऐसे लिखना शुरू कर रहा हूं और हो नहीं रहा है मेरे से. नहीं, आप जैसे कंसिस्टेंटली करते रहोगे, खेलते रहोगे इंट्रोडक्शन के साथ, पहले से ऐसे अच्छे ना हो, फिर बाद में जैसे आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना, एक टाइम आ ही जाता है. ऐसे में मैं ये बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि कंसिस्टेंटली पीपल whom I have mentored, they have scored like from 105 जो स्कोर कर रहे थे कंसिस्टेंटली, वही वहां पे लटके हुए थे, उनको 135-140 तक लाए. तो आई हैव नो डाउट कि यू कैन डेवलप दैट नैक ऑफ राइटिंग, क्योंकि वो मैंने भी डेवलप की, मुझे भी नैक ऑफ राइटिंग नहीं थी. तो आप वो टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हाँ यार ये चीज वर्कआउट हो रही है, ये चीज नहीं हो रही है. आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहोगे, राइट मेंटोर, राइट गाइडेंस करते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू आर बाउंड टू सक्सीड इन ऐसे, यू आर बाउंड टू एक्चुअली come out triumphantly in essay basically. एक था एंटिसिपेटर, एक था फैक्चुअल एंड इंटरेस्टिंग स्टार्ट. ऐसे में गुफ अप कर चुका था सेकंड ऐसे, तो ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इतने नंबर नहीं आने चाहिए थी, बट मैं उसका और एक रीजन भी बताता हूँ. फैक्चुअल इंटरेस्टिंग स्टार्ट और एक था मेरे साथ, तो मेरे कंक्लूजन थे ना पहले ऐसे का, ये वाला, ये मैं डाल देता हूँ. ओके, यहाँ पे आया ही नहीं है. ओके ओके, ये मेरे 20% में आता है. ऑसम इंट्रोडक्शन के बाद आता है एम्फसिस ऑन द टॉपिक पीरियोडिकली, बताता हूं ये क्या है. तीसरा मैं आपको बताता हूँ. गाइज, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So is it going interesting? Are you feeling engrossed like what I'm trying to say?
Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Yes, sir. या ओके. सो मैं क्या करता था, 20% जो मेरी स्ट्रेटेजी पैरेटो की, ये वाली स्ट्रेटेजी, तो मैं री एम्फोसाइज करते रहता हूँ टॉपिक को पीरियोडिकली, और वो आ जाती है, वो भी विथ राइटिंग. अगर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, कुछ और टेक्निक्स बताऊंगा, तो वो आपको वहां पे हेल्प करेगी बेसिकली कि कैसे उसको री एम्फोसाइज मारना है. स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में मे बी आप 5 ऐसे 6 ऐसे में ना कर पाओ, बट लेटर केसेस में गारंटेड है कि वो होना शुरू हो जाएगा. और मेरा रहता था यार, मैंने एक्चुअली लिखा था, आई डो नॉट नो व्हाई इट हैजंट कम ओवर हियर. ओके, सर या बोलिए. यस. सर एंटीसिपेटरी स्टार्ट का जैसे आपने बताया सर, इसके लिए कंटेंट कहाँ से बेसिक मतलब प्रिपेयर किया था आपने कंटेंट जो इसका है? हाँ, राइट 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 राइट, दैट्स गुड. अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारा, मैंने एक ना रिपोजिटरी बनाई थी एवरनोट पे, तो जब भी मुझे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती थी मैं कॉपी पेस्ट कर देता था. और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी, मेरी बहुत वाइडर रीडिंग है. मतलब मैं कोरा पे जाके कितने सारे आंसर्स रीड करता था, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ. आज थोड़ा कम हो गया कोरा, आज मैं कुछ अलग टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ, बट कोरा पे तब मैं जाता था तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स वहां पे रहते थे. तो वो भी चीजें, और मेरी मेमोरी में भी थोड़ी अच्छी भी हो सकती है, पता नहीं, तो मुझे तब का भी रिकलेक्ट होता है, बट वो सबको हो सकता है बेसिकली. तो क्या होना है ना कि जैसे कोरा पे कभी गए, हिस्ट्री के टॉपिक्स देखते रहना, वहां पे कुछ स्टोरी मिल जाती है, अच्छी स्टोरी मिलती है काफी. medium.com पे कुछ कुछ ब्लॉग आप डालोगे, जैसे हिस्ट्री के ब्लॉग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के ब्लॉग, साइंस के ब्लॉग, ऐसे कुछ डालोगे, वहां से स्टोरी मिलती है. पेपर में से, हिंदू पेपर, वहां से तो कितनी अच्छे से स्टोरी बनती है. मतलब आप वो स्टोरी को लेके कहीं पे भी लेके जा सकते हो. ऑनेस्टली एक स्टोरी, एक मतलब मैं बताता हूँ, अगर एक ऐसे आता है इंटरनेशनल, ओके लेट मी थिंक आउट, क्योंकि मैं बहुत विदाउट एनी प्रिपरेशन आपको बहुत नेचुरली डिलीवर कर रहा हूँ ये लेक्चर. मैं प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज मैं नेचुरल, मेरा जो वे तरीका है मैं वही ये करना चाह रहा. तो लेट मी गिव यू समथिंग. ओके, जस्ट वेट. या, तो बेसिकली व्हाट आई वुड से इज, ओके, मुझे अगर वो एग्जांपल ध्यान में आता है कोई करंट, तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ. तो मैं टॉपिक को पीरियोडिकली मेंशन करता हूँ. मतलब ऐसे शुरू हो गया, मेरे पैरेटो प्रिंसिपल का 20% पार्ट है जो आपका इफेक्ट करेगा 80% ऑफ द स्कोर. तो 20% में क्या क्या है? ऑसम इंट्रोडक्शन, आपने टॉपिक को रिपीट किया, और इसका फायदा भी है, मैं बताता हूँ क्या फायदा है जब आप टॉपिक रिपीट करते रहते हो बीच बीच में से, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और तीसरा, आई वुड से मैं कनेक्ट करता हूँ कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन के साथ. अब ये मेरी स्किल है, बट आप भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. कनेक्ट सर विद इंट्रो. या सर और फिलोसफिकल ऐसे में आप कैसे स्टार्ट करते थे मतलब? यस यस, एंटी मैं वो भी बताता हूँ आपको. कोई यस भी इशू नहीं. और ऑनेस्टली बोलो, फिलोसॉफिकल ऐसे नो डाउट ऊपर से लगते हैं काफी टफ है, बट अगर आप मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच जो है, अगर आप वो यूज करोगे वहां पे, तो मुझे नहीं लगता वहां पे भी कोई दिक्कत आएगी. फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच से मैं आपको वो भी बताता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच क्या है. ओके, मुझे लगता है अराउंड 50 मिनट्स हो गए, and I've taken this far away. Okay, I will try to conclude as fast as I can. तो basically तो मैं कंक्लूजन को, इंट्रो को कंक्लूजन के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी खासियत है. तो मैं एक हिस्से में वैसा करता हूँ कि मैं कनेक्ट करता हूँ इंट्रो को कंक्लूजन के साथ. ये एक ऐसे में मेरा रहता है स्ट्रेटेजी जनरली. सेकेंड ऐसे में मैं शायद से वो नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी कोट के साथ एंड कर देता हूँ, मैं कोड भी डाल देता हूँ एंड में. और ये सब कब आता है? जब आप बहुत प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो आपके साथ वो कोड भी याद रह जाते हैं, आपको पता चल जाता है, इंटरकनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं ब्रेन में, आपके न्यूरल नेटवर्क में. तो बेसिकली वो आराम से आप एक चीज दूसरे चीजों के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हो, बट इट नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स परसिस्टेंस. मतलब आप ऐसे लाइक आप अगर बिगनर हो तो हाँ, आपको लाइक मेहनत करनी होगी कि ओके कैसे मैं करूंगा, कैसे इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कंसिस्टेंटली, वो हो जाएगा. वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. और मेरा एक था कनेक्ट विद इंट्रो एट द कंक्लूजन, रीएम्फसाइज ऑन द टॉपिक पीरियोडिकली, ऑसम इंट्रोडक्शन. और मैं कभी कभी कोट डाल के भी एंड करता हूँ एसएस को, कोट शुरू भी करके एंड करता हूँ, और कोट डाल के भी एंड करता हूँ. तो बेसिकली या तो
कोट बेस्ड कंक्लूजन ये भी करता हूँ, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सर तो पोयम वगैरह, पोयम भी लिखते थे आप कुछ? पोएम का क्या प्रॉब्लम है, मुझे जो लगा कि पोएम अगर आप डालोगे ना और समझो, उससे ध्यान में नहीं आई, क्योंकि लिटरली है वो एक लिटररी स्किल है एक काइंड ऑफ। तो अगर उसको ध्यान में नहीं आई तो वो पेनलाइज करेगा आपको, गारंटेड पेनलाइज करेगा, क्योंकि उसको ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। बस उतना देखना कि वो पोएम इतनी सिंपल होनी चाहिए, इसे समझ जाना चाहिए। मतलब आई मीन टू से उसे डिजर्न होना चाहिए। मतलब अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम लिखोगे इनटू दैट हेवन, उसके 2-3 लाइन मेंशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मतलब पूरी सब लाइनें मेंशन करना थोड़ा मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए वो चीज। और आप कर सकते हो कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो 2020 का जो ऐसे था उसमें मैंने डाला था ऋग्वेदा का कोट था, और टॉपिक क्या था अपना? टॉपिक था 2020 का ये वाला, लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो मैंने डाला, ये शुरुआत है मेरी, मुझे पूरा याद है। इन द प्रिस्टाइन हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा आर द ग्लोरियस वर्ड्स टू लिव अ गुड लाइफ। व्हेन यू वर बोर्न द होल वर्ल्ड क्राइड, द होल वर्ल्ड रिजॉइस्ड एंड यू क्राइड। लिव योर लाइफ इन सच अ वे that when you die, the whole world cry and you rejoice. और फिर डाला, this should be the journey of life। देखो मैंने टॉपिक के एकदम करीब रहा। इंट्रोडक्शन में क्लियर होना चाहिए मैं आगे क्या बोलने वाला, मेरा इंट्रो इतना क्लियर होना चाहिए। मैंने ऐसे डाला, this should be the journey of life। We all are born as human being, but to become more human, with humanity, ऐसे वर्ड कुछ डाला होगा, it requires efforts and this is a long journey and this has to be skilled। the art of living a good life, being human life, has to be learned। ये डाला था मैंने। तो आई गेस ये सब चीजों से आई गेस आपको ध्यान में आया होगा। मेरा इंट्रो इतने अच्छे होते हैं और मैं इंट्रो में ही चीजें बता देता हूँ, मतलब मैं बता देता हूँ कि आगे क्या आने वाला है। इंट्रो में मैं बहुत क्लियर होता हूँ, मैं कौन से साइड से ओके मैं कौन से साइड से चीजें एक्चुअली ये कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन से साइड में क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंट्रो में मैं बहुत क्लियर करता हूँ, से व्हाट यू वांट टू से, कि भाई मेरा ऐसे ये डायरेक्शन में जाने वाला है। तो मैंने बता दिया पहले इसमें कि भाई लाइफ बड़ी जर्नी है, वो एग्जाम्पल देके, वो कोट देके ऋग्वेदा का, कि लाइफ बहुत बड़ी जर्नी है फ्रॉम बीइंग। सर ये पहले से नोट्स बना के रखे थे आपने, मतलब नहीं, ये माइंड में वाला कैसे आ गया एकदम? हाँ, मेरा बहुत सारे कोट्स मेरे लर्न है, आज भी लर्न है। मेरा 2019 का पेपर याद है मुझे, एंड किया था मैंने लाओ जू के कोट पे। कोट क्या था? या इफ यू हैव द बिलीफ, वो करेज एंड जो ये वाला जो ऐसे है ना, ये वाला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे लिखने में मुझे बहुत बड़ा मजा आता है। तो ये वाला ऐसे, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन। देखो हाँ, मैंने एंड भी वही वर्ड पे किया, जो वर्ड पे आ रहा है मैंने वही वर्ड पे एंड किया है मैंने, मतलब लाइक 2 मिनट। ओके मैंने एंड भी वही चीज पे किया जिस चीज पे शुरू होना। मैंने डाला, इफ दिस आर द कोट्स ऑफ लाओ जू, नॉट माइन। इफ यू हैव द करेज टू 2 मिनट to choose your path, if you have the courage to stay on it, if you have the firm conviction to surmount the rough stretches, if you do, you will begin to see that the road begins to follow you। But every single step start with the courage to accept and dedication to improve। देखो मैंने फिर से री-एम्फसाइज मारा ये पॉइंट। आई डू दैट थ्रू आउट माई एसेज, और मैं बहुत अलग अलग तरीके से करता हूँ, अलग अलग वे में कनेक्ट करता हूँ इसको। और जो कोट है, मैंने शायद से बहुत सारे कोट लर्न करे। अभी मुझे तो वैसे बहुत सारे कोट याद आएंगे, अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये ऐसे है तो मैं डाल दूंगा। अगर कोई इकोनॉमी पे ऐसे आया तो एडम स्मिथ का कोट है, एंड नेशन कैन बी एनस्लेव्ड बाय 2 थिंग्स, either by debt or by sword। अभी बहुत सारे ऐसे मेरे कोट याद है मुझे। बुद्धा का कोट है, स्किल्स आर स्टार्टेड विथ लर्निंग एंड मास्टर्ड विथ इंप्रूवमेंट, नथिंग इज हेरिडिटरी एक्सेप्ट डेथ। ये मैंने डाला था स्किल के इसमें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना, ऐसे ये वाला, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर, यहाँ पे डाला था मैंने, वो ऐसे उधर डाला था मैंने, ये वाला कोट स्किल के ऊपर डाला था। तो स्किल का जब पार्ट शुरू हुआ तो ये डाल दिया, स्किल्स आर स्टार्टेड विथ लर्निंग एंड मास्टर्ड विथ इंप्रूवमेंट, नथिंग इज हेरिडिटरी एक्सेप्ट डेथ।
यू हैव टू डेवलप स्किल इन योर ओन लाइफ एंड इवन फॉर द फ्यूचर, ऐसे डाल के किया था। तो मैं बहुत सारे कोट याद है मेरे, बहुत सारे कोट मैंने एग्जाम जाने के पहले पूरी रिपोजिटरी बनी, ये सब कोट वही रिपोजिटरी में हो गए, और मैं जाने के पहले पढ़ लेता हूँ ये सब कोट वोट। और ये पढ़ना चाहिए आधे घंटे पहले या 1 घंटे, जैसे आपका मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, बट एटलीस्ट जाने के पहले एक बार कोट वोट पूरे ऐसे हो जानी चाहिए तुम्हारे। और तुम बार बार उसको करते रहोगे ना, हिट करते रहोगे ना, तो वो हो ही जाता है, मतलब दिमाग में बैठ ही जाता है। क्योंकि यार आप अगर यूपीएससी करो इतनी भी मेमोरी वीक नहीं, आराम से हो जाता है। तो मैं ऐसे करके वो ऐसे डाल देता था। या जस्ट वेट, मुझे एक्चुअली प्रेजेंटेशन पे जाना होगा। ओके, जा नहीं रहा हूँ। ओके या तो इस वे में मैं एक्चुअली कनेक्ट विथ इंट्रो एट द कंक्लूजन, कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन इस टाइप में करता था। और मैं बेसिकली ना बीच बीच में से ऐसे कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ, कहीं कहीं पे मुझे लगा बहुत ही अच्छा कोट है तो कोट को एपोस्ट्रोफी में डाल देता हूँ, 2 एपोस्ट्रोफी में कोट डाल दिया। ऐसे ब्रैकेट बना देता हूँ, कहीं कहीं पे मुझे लगा कि हाँ यार इधर ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट बना दिया। मैं ऐसे डायमेंशन लेता हूँ जो शायद से किसी ने पढ़े भी ना हो। तो मैं आपको मेरे एक डायमेंशन का एक दिखाता हूँ, मैंने एक डायमेंशन डाला था बेसिकली। ओके ओके, आया ही नहीं हो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो जो मेरा डायमेंशन था वो था इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर। मैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर भी डायमेंशन डालता हूँ, तो आप समझ सकते हो, मतलब एक बुक जो मैंने बताई थी आपको, नोएल हरारी की, बहुत यूनिक इंट्रोडक्शन, वहां से मैं लेता हूँ। तो ये देखो, तो एक्सक्लूसिव डायमेंशन है मेरे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर डायमेंशन। तो मैंने 2020 के इसे में ऐसा डाला था कि ह्यूमन इवोल्यूशनरी मतलब मैं अगर पर्सपेक्टिव देखूंगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का, तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बहुत ब्रूटल हुआ है। तो उसको ह्यूमैनिटी डेवलप करनी पड़ी। वो ह्यूमन नहीं था, वो बीइंग ह्यूमन नहीं था, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग था, उसको ह्यूमैनिटी डेवलप करनी पड़ी। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ बीच बीच में से ऐसे जब लिखता हूँ, तो इस टाइप में मैं ऐसे को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। बट मैंने तो बहुत तुम्हें चीजें, मैं साइकोलॉजी बता देता हूँ, डायमेंशन में मेरा साइकोलॉजी आता है, पता है, मतलब ये कोई लिखता नहीं होगा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो मैं कभी कभी ऐसे की शुरुआत भी कर देता हूँ, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। मेरा डायमेंशन और एथिक्स मेरा एक बहुत अच्छा डायमेंशन डाल देता हूँ मैं, एथिकल डायलेमा इसके ऊपर वो डाल ही देता हूँ मैं। तो मेरे ना मैं डायमेंशन बहुत ही वाइड रखता हूँ, वाइड और ओपन। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यस, ये भी एक मेरा डायमेंशन होता है। मैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का डायमेंशन डाला था मैंने पहले वाले सेकंड वाले हिस्से में, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या बताता है। तो मैं बहुत यूनिक डायमेंशन डालता हूँ। तो गेटिंग फिर वो स्कोर आना इतना मुश्किल नहीं रहता है, बट ये भी होता है ना कि कनेक्ट कैसे करोगे तुम। तो कनेक्ट जब करते हो तुम, वाइडर रीडिंग करते रहते हो, तुम चीजें करते रहते हो, तो कनेक्ट होना शुरू होता है। और मेरा कोई भी ऐसे जो होता है मैं बहुत ही ग्रैंड विजन पे लिखता हूँ। तो बेसिकली मेरा विजन बहुत बड़ा होता है। मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ कि ओके नेशन विल कम टुगेदर, नहीं, मैं जाता हूँ ह्यूमैनिटी विल कम टुगेदर, द लाइफ ऑफ दिस होल कॉस्मोस, कॉस्मोस हैज क्रिएटेड दिस लाइफ। मैं बहुत बड़े ग्रैंड विजन दिखाता हूँ इवैल्यूएटर को। तो मेरा विजन बहुत ग्रैंड होता है और मैं टॉपिक को क्वेश्चन करते रहता हूँ, इज इट द ट्रूथ, ऐसा ही है या नहीं है, ये भी मैं करते रहता हूँ बीच में से। सर तो या बोलिए बोलिए सर, और सब हेडिंग्स देते थे आप, और पैराग्राफ में कितनी लाइन लिखते थे, एक मिनिमम एक पैराग्राफ? सब हेडिंग्स में शायद से अवॉइड करता हूँ, बिकॉज वो ए से चल रहा है, तो मैं और सब सर एक हेडिंग्स नहीं दूंगा। पैराग्राफ में कितनी लाइंस रहती थी लगभग? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। एक पैराग्राफ में नॉट मोर देन 4 to 5 लाइन्स, 5 लाइन्स भी मैं शायद से ज्यादा बोल दी। हाँ, लेकिन 5 मैक्स थी, 4 के करीब में रुक जाता था पैरा। और मेरे सर कनेक्शन और बहुत अच्छे हैं पैरा के बीच में, मैं एक पैरा टू सेकंड पैरा बहुत इजीली जाता हूँ। या हाँ, बोलिए बोलिए। सर, और जैसे अपने को 1250 वर्ड्स में लिखना रहता है, तो मिनिमम 10 to 11 पेजेस लिखना, मतलब 12 पेज हाँ, तक मतलब लिखते थे आप? मैं जनरली मेरी स्ट्रेटेजी में ना भर देता हूँ पूरे पन्ने। अब प्लीज 12 पेज? मेरे इस पे मत जाना। हाँ, भोजन है मेरा जो फ्रेंड है, जिसको भी 140 प्लस आए हैं, तो उसने सब पन्ने नहीं भरे, उसने लास्ट का 1.5 पन्ना छोड़ा है, तो भी नंबर आए। बट मेरी स्ट्रेटेजी देखो यार, जनरली रिस्क क्यों लेना, लाइक उसको क्यों लगे कि मैं हाफ हार्टेड ऐसे लिखूंगा, तो उससे अच्छा मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं मोस्टली लास्ट, और प्रॉब्लम ऐसा मेरे पास इतना कंटेंट होता है तो मेरा लास्ट पन्नों तक चला ही जाता है ऐसे। हेलो तो सर। ये हो ही जाता है सर बेसिकली। हाँ, यस यस। सर या
ऐसे आइडियलिस्टिक हो सकता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली ना दिख रही। ऐसे आइडियलिस्टिक हो सकता है। मेरा एक ही बोलना है, तुम कोई भी ऐसे लिखो, बस यार उसे ना फैक्ट्स पे ना उसे बता देना कि यार ये मेरा व्यू है, ये मेरा स्टैंड पॉइंट है, बस उतना याद रखना। सर जैसे वो व्यू को उसको फ्यूचर में हाँ कुछ चीज मतलब इवॉल्व होके वैसी हो जाए, आइडियलिज्म हाँ दिखे हाँ उसमें, उस टाइप से। हाँ, वो तो करना ही ना। ग्रैंड विजन में मैंने बताया ना, मैं बहुत बड़ा विजन बताता हूँ। नाउ लेट्स सी द वेयर ह्यूमैनिटी गोज, ऐसे बताता हूँ। तो वो नेगेटिवली लेट्स इम्पैक्ट तो नहीं करेगा ना? नहीं, कभी नहीं। तुम अगर पॉजिटिवली लिख रहे हो ना, हाँ, अब ये जो बोल रहे हो लेट्स सी, सॉरी, मैं इसको एफर्मेटिवली डाल दूंगा कि ह्यूमैनिटी हैज टू मूव टुवर्ड द प्रोग्रेसिव पाथ अहेड। उसको पॉजिटिवली फील होना चाहिए यार। सही में ये बंदे ने ऐसे लिखा और उसको पॉजिटिव वे पे लेके गया ये बंदा, तो उसको वो फील होना चाहिए यार, वो उसको फील होना चाहिए। और उसको जब फील होगा ना तो मजा आ जाएगा, थ्रिल आएगा उसको ऐसे पढ़ने में। तो आपको कोई रोक नहीं सकता यार कि आपके नंबर क्यों कम आए, नहीं हो सकता है। मुझे मतलब मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ ये चीज की। और आप आज भी मुझे ऐसे लिख के दोगे तो आई कैन लाइक टेल यू इन आई वुड टेल इन 15 to 20 minutes like that whether are you really up to that mark. I can tell you that for sure. क्योंकि वो अगर ग्रैंड विजन डालोगे ऐसे में, उसको ऐसे को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करोगे, मुझे कोई डाउट ही नहीं, आपको नंबर आने ही आने। जी सर, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं चाहिए, जैसे ये नहीं कोई कह सकता कि पॉवर्टी पूरी तरह ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ऐसे में यूज कर सकते हैं कि वन डे पॉवर्टी विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। या ये यार डालना चाहिए, ये डालना चाहिए। इंस्पाइट ऑफ, मैं अगर रहता तो मैं इसको ऐसे लिखता, in spite of all the challenges has been faced by humanity since ancient to the present times, poverty, which is sickness to humanity, has to be eradicated and eliminated. ये होना ही चाहिए। सर इन ये पर्सनालिटी टेस्ट one candidate who got 652 rank, I think in 2017, he was saying that you should not be so idealistic in the personality test. That's why I am asking that question. Yeah, the Shubham would be much more in a better position to answer that. Okay. हाँ, मतलब वहां पे आइडियलिज्म तो बहुत ही अलग बात होगी, ये पर्सनालिटी टेस्ट किया। तो अगर फिर से यूपीएससी के नोटिफिकेशन पे जाऊंगा तो मैं वो नोटिफिकेशन क्लियरली मुझे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कुछ अलग बातें बताता है, ऐसे के लिए मुझे बहुत अलग बातें बताता है। तो वो भूलना नहीं चाहिए आप लोगों ने कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन क्या बता रहा है। बस वो नोटिफिकेशन याद रखना, क्लियरली बता रहा है, कंसाइज होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, सब्जेक्ट अप टू द टॉपिक होना चाहिए, जो भी दिया है एकदम उसको कंसाइजली लिखो, क्लियर बता रहा है। मतलब सर अप्रोच चेंज होगी, मतलब ऐसे में और फिर यस पर्सनालिटी। यस यस यस, या ऑफ कोर्स मैन, ऑफ कोर्स। या राजा, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर दूसरे का व्यू पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का पॉइंट है कि बीइंग ह्यूमन का वो कॉन्सेप्ट देता है कि कम्युनिज्म आएगा तो बीइंग ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग्स हम बीइंग ह्यूमन बनेंगे। तो ऐसी चीजें ऐसे में कंटेंट पार्ट में लिख सकते हैं क्या, थर्ड फोर्थ पैरा में, या फिर हमें अपना व्यू पॉइंट ही देना है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट फिर उसको है ना तुमने मेंशन करना है, क्योंकि क्या है वो टॉपिक को तुम्हें एनालाइज करना बोल रहा है। बेसिकली वो देख रहे हैं तुम्हारा कि व्हाट यू आर थिंकिंग, कितना एक क्रिटिकल एनालिसिस है, प्लस कितना कंसाइज है, कितनी तुम चीजें अच्छे वे में पुट कर पा रहे हो। तो जनरली आई फील कि तुमने वो एज अ फैक्ट देना चाहिए, ये कार्ल मार्क्स बोल रहा है, लेकिन चार्ल्स डार्विन तो कुछ अलग बोल रहा है। और ज्यादा इंफोसाइज नहीं करना चाहिए फिलोसोफर्स को। मैं तो 4 कोट भी डालता हूँ ऐसे में, बट मेरा फिर वो अलग फ्लो ही अलग है, मेरा ऐसे लिखने का ढंग ही अलग है। तो ये वे में मैं करता हूँ। या सर हाँ बोलिए। सर ऐसे में अच्छी वोकैबुलरी और फ्लारी लैंग्वेज से कितनी एज मिल सकती है? आई थिंक मिलती है। आई कैन नॉट टेल, बट आई पर्सनली फील कि मिलती है यार। 4-5 मार्क्स का तो फर्क तो गिरेगा ही। मतलब अगर ऐसे तुम्हारा नॉर्मल रहा, समझो मेडियोकर ऐसे लिखा है, तुमने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं की है ऐसे में, तो 3-4 नंबर का तो फर्क गिरता है थोड़ा, कि हाँ चलो कमांड अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, उतना तो फर्क गिरेगा। और ऐसे अगर तुमने सही लिखा है, ऑर्डर लिखा है, कंसाइजली लिखा है, सब लिखा है, तो फिर अच्छा एडवांटेज होता है। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन गाइस?
सर जैसे कि आपने बताया कि ऐसे को जीएस के साथ में कनेक्ट करना चाहिए और बाकी जो भी दूसरे वाइड टॉपिक्स हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा, तो वो थिन लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए जहाँ पे ऐसा ना लगे कि आपका ऐसे एक जीएस पेपर में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ऐसे और जीएस पेपर को डिफरेंशिएट कैसे करना चाहिए? मैंने एक्चुअली ये नहीं बोला कि आपको जीएस पेपर का इसमें डालना होगा। मैंने सिर्फ ये बोला कि फैक्ट को सिर्फ उसको सप्लीमेंट करना है। आप जो भी लिख रहे हो थोड़ा एक सप्लीमेंटेशन तो चाहिए। और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं पहले ऐसे में तो सप्लीमेंट भी नहीं किया मैंने फैक्ट। मेरा बहुत ही, अब कैसे बोलूं, वो नैक है मेरी आंसर ऐसे राइटिंग की, तो दैट नैक कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट। तो वो बहुत ही इनेट नैक है मेरी लिखने की ऐसे की। सर तो एक वो बार वही जो ह्यूमन लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी वाला ऐसे उसका सर पूरा आप एक बार इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक आपने स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया था, थोड़ा एक बार वो कर दीजिए ये elaborate। अंशुमन बेसिकली अब ये बताना थोड़ा ये होगा क्योंकि 1 घंटे के आसपास हो रहा है, यू नो यस सर, तो अभी बस एंड में वो आप स्ट्रक्चर बता दीजिए कैसे, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में, मतलब जैसे जीएस के आंसर में ये होता है स्ट्रक्चर, नॉर्मल इंट्रोडक्शन फिर बॉडी फिर कंक्लूजन, तो ऐसे में क्या रहता है सर, मतलब थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली बॉडी तो रहना ही है, इंट्रो भी रहना है, कंक्लूजन भी रहना है, वो तो रहना ही रहना है। बट द थिंग इज ऐसे में कंक्लूड कैसे करते हो बहुत मैटर करता है यार। ऐसे का जो कंक्लूजन है, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पैरेटो स्ट्रेटेजी में 2 चीजें बहुत मैटर करती है मुझे। What is that 20% that is going to affect my whole game? And for me, is the intro, its conclusion. Body is there, no doubt, वो तो है ही, but that does not comes in my 20%. वो मेरी अलग चीजों में आता है। But for my Pareto में I try that और पता है जाने से पहले ना तुमने इंट्रो भी अच्छा किया ना, इंट्रो का नेटवर्क इफेक्ट होता है। मतलब एक चीज दूसरे चीजों से कनेक्टेड है, तो तुम इंट्रो अच्छा लिखोगे तो सेकंड पैरा अच्छा लिखोगे, थर्ड पैरा अच्छा लिखोगे, फोर्थ पैरा अच्छा लिखोगे। तो वो इंट्रो अच्छा होना, मुझे लगता है कि मतलब यार वो प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए कि इंट्रो अच्छा ही हो जाए। यस सर डायमेंशन कितने मैक्सिमम होने चाहिए ऐसे में? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम जब पेपर से आया तो मैंने देखा कि मैंने 9 या 10 डायमेंशन के ऊपर नहीं लिखे। कुछ में 10, 11 के 12 के करीब एटमोस्ट गया हूं मैं एक ऐसे में, बाकियों में एवरेज रहा है 9 डायमेंशन। रीजन है 9 डायमेंशन के ऊपर वर्ड्स नहीं रहते, अगर तो आप अच्छा ऐसे लिख रहे हो, टाइम नहीं मिलता उतना। सर ये रिवॉर्डिंग होता है मैक्सिमम अगर डायमेंशंस मेंशन करना? नहीं, मैं एक बात बोलूं फिर से, यूपीएससी ने जो 4 चीजें बोली है मैं उसको कभी ये करूंगा नहीं। कंसाइजनेस, ऑर्डरलीनेस, स्टिकिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, इफ यू कैन डू दैट एंड इफ यू कैन पुट दैट, मैं 12 के ऊपर नहीं जा पाया। इफ यू कैन इट्स वेल एंड गुड, बट फिर वो फील होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे रीड करूंगा तुरंत पता चल जाता है यार तुमने कितनी मतलब इसमें ना प्रॉब्लम की है, मतलब लाइक है या नहीं, वो फ्लो आ रहा है नहीं ऐसे का, बस या वो बात है। So guys, any more questions? सर और आगे Please feel अभी free to फ्यूचर ask. में किस टाइप का प्रोग्राम लॉन्च होगा, मतलब ये बता दीजिए, टेस्ट सीरीज की मतलब किस टाइप से, मतलब। हाँ, तो वो उन्होंने शायद से डाला है इधर अपने इस पे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको अच्छा टेलीग्राम चैनल पे सर, है या पूछ लो उधर टेलीग्राम और चैनल सर के जैसे एडमिन को। कि टेस्ट सीरीज होगी तो जैसे हमने आंसर लिख के भेजे तो आप फिर फीडबैक आपसे बात, मतलब ऐसे होगा ना, 1-to-1 फीडबैक टाइप वन का टू वन मैकेनिज्म? 1-to-1 और हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो क्वालिटी के ऊपर, बिकॉज यस ऑनेस्टली मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो मैं बहुत मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ऐसे के। मैंने कुछ भी यस इसमें ब्लफ नहीं किया है आपको। तो मैं बहुत ही पर्सनली जो मैंने लिखा मैंने आपको वही बताया। तो सर, और अपन आपका 1-to-1 ऑप्शनल क्या था करेंगे। सर? फिलोसॉफी ओके सर। या सर ऑप्शनल के लिए कुछ बता सकते हैं? फिलोसफी मेरा भी ऑप्शन है। हाँ, शुभम विल बी द मोस्ट राइट पर्सन टू टेल यू दैट, ओके ओके। मोस्ट राइट पर्सन, बिकॉज शुभम की जो जर्नी है बहुत ही परसिस्टेंस, डेडिकेशन और बहुत ही चीजें वो बंदे ने करी है। तो द मोस्ट बेस्ट गाय, और जितने भी बंदे यहाँ पे, मुझे लगता है शुभम अग्रवाल इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। वेरी ऑनेस्ट गाय, वेरी जेन्युइन गाय, एंड हैज राइजन अप थ्रू आई वुड से रियल शेयर परसिस्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। आई एम नॉट टेलिंग यू लक, मुझे नहीं लगता लक उसमें, उसका परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, स्ट्रैटेजी, क्योंकि कंसिस्टेंटली हम रहे, एक साथ दिया है हम लोगों ने, अटेम्प्ट दिया है। तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि शुभम इज द बेस्ट गाय टू गो एंड यू कैन आस्क एनीथिंग टू हिम।
and if he is your mentor, you are lucky, very lucky. सर आपने ऋग्वेद man. से ऋग्वेद से, हाँ 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 सर वहां से आपने कोट किया, तो अगर हम हिंदी या संस्कृत से कोई कोट या पोएम कोट कर रहे हैं तो उसको हमें रोमन में लिखना है या उसकी सेंस समझा देनी बस? रोमन, और ट्राई करना कि वो इंग्लिश में रहे, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम एक डाला था कि सब इंग्लिश में ही होना चाहिए, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग देवनागरी, कुछ था, एक बार देख लेना नोटिफिकेशन, तो आपको वही करना होगा, यू डोंट हैव टू मतलब गो आउट ऑफ दैट। या और आप कोट को ना ट्रांसलेट कर सकते हो। या समवन इज सर आई हैड अ डाउट। थैंक यू सर। या प्रैट, गुड इवनिंग सर। सर इन मैनी केसेस लाइक जैसे हम फिलोसॉफिकल एसेस की जो बात करते हैं वो तो सर विद टाइम डेवलप हो जाता है, एंड व्हेन वी प्रैक्टिस मोर इट डेफिनेटली गिव्स अस द रिजल्ट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, वी नो दैट। बट सर कई बार क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं, लाइक देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर वन ऐसे, तो अगर हम कोई टेक्निकल टॉपिक पे ऐसे लिखना चाहें, जैसे कि सर जैसे सपोज नैनो टेक्नोलॉजी है या ग्रीन एनर्जी है या एनीथिंग ऑन दैट, तो सर उसमें फैक्ट कोटिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या स्टैटिस्टिकल डेटा या ऐसी चीज़ें, उसके लिए सर क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, या एनीथिंग दैट वी शुड कंसिडर जो कि फिलोसॉफिकल ऐसे से डिफरेंट रहेगा इन दैट काइंड ऑफ एन ऐसे, एक टेक्निकल ऐसे में? ऑनेस्टली बोलूं तो यस आई डू एग्री ऑन दिस कि या और प्रिपरेशन होनी चाहिए, मतलब ऐसे का प्रॉपर ऐसा तुम्हारा फोल्डर होना चाहिए। अब मैं वो बता नहीं सकता मेरे एवरनोट क्योंकि यहाँ पे एक्टिव नहीं है, तो मैं आपको दिखाता था, प्रॉपर होना चाहिए। ओके फिलोसॉफिकल के वो स्ट्रैटेजी पूरी डिस्कस हो जाएगी द मोमेंट वी हैव दैट 1-to-1, तो उसमें मैं पूरा बता दूंगा कि बेसिकली पूरा मेरा भी कंटेंट है, और देन और कुछ थीम्स के अराउंड घूमते हैं ऐसे, तो वो थीम के अराउंड कंटेंट पूरा आ जाएगा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और उस साल कुछ नई चीजें आती रहती है मार्केट्स में, मतलब हुआ रहता है, इवॉल्व हुआ रहता है वर्ल्ड में, तो फिर हमें वो भी ध्यान में रखना है, तो फिर वो हिसाब से हम थोड़ा कंटेंट वो भी डालते रहेंगे। और एक बार कनेक्शन हो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं होता है, फिर तो तुम इधर का डेटा उधर प्ले करो, आराम से हो जाता है वो। बट हाँ एक राइट पर्सनल मेंटोर मिल जाए ना, एक गाइडेंस मिल जाए ना, मुझे लगता है यार यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना बहुत ईजी है। बस साला वो मिलता नहीं है, प्रॉब्लम ये एंड तक नहीं मिलता, बहुत जनों को तो नहीं होता है। या thank you very much sir, we're lucky to have you guys as mentors. Yeah, thank you man. Yeah, so any other question guys, please feel free ask, like no issues, you can always like ask, and I can really solve that. So I guess सर आप कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस बता सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक बिहेवियरिज्म आपने बताई अच्छा था, और ऐसे मतलब जो थोड़े यूनिक हो, वरना यूजुअली सब हिस्ट्री के और ऐसे चीजें ही लिखते हैं। हाँ बट मैं बता सकता हूँ बट सम थिंग्स आर टू बी केप्ट सीक्रेट, सो वंस वी हैव दैट मेंटरशिप सेशन तो श्योरली आई विल टेल यू दैट। ऐसा नहीं है, बट क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर मोमेंट में अब बताना शुरू करूंगा ना। ये पता है ना यूपीएससी इतना बड़ा दायरा है, फिर कोई भी कुछ भी पढ़ने लग जाएगा यार, और रिचार्ड थेलर की बुक पढ़ने लग जाएगी बिहेवियर इकोनॉमिक्स पे, और बेचारे लोग ये ना भटक जाएंगे यार, नहीं करना है वो स्ट्रेटेजी, मतलब हमने भी वो किया है, तो यार आप क्यों करो वो चीज। हाँ अगर कोई राइट गाइडेंस एकदम मेंटोर है जिसने किया है, उसको पता है, फिर आप उसे पूछो, लेकिन डोंट गेट मिसगाइडेड मैन। या सर ऑन कितना फ्रीक्वेंटली ऐसे की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे लाइक आई हैव हर्ड पीपल से कि हर हफ्ते एक ऐसे लिखना चाहिए एवरी संडे, या जैसे हम डेली आंसर राइटिंग की बात करते हैं, डेली ऐसे राइटिंग, तो सर आई डोंट थिंक इज लाइक आई डू नॉट नो, सो कितना फ्रीक्वेंटली ऐसे लिखना चाहिए, और क्या ऐसा करना चाहिए कि एक दिन पूरा ऐसे को दे दें या एक हफ्ते में एक ऐसे लिखें, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऐसे प्रैक्टिसिंग, और बैकग्राउंड वर्क क्या करना चाहिए बिफोर वी आर अप्रोचिंग एन ऐसे, लाइक at the initial level before we have gained that flow or momentum? With respect to frequency, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। वो तो जैसे आपके पेपर आएंगे तो मैं तुरंत बोल सकता हूँ कि आपको क्या लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। अगर फ्लूइड नहीं है, ऐसे में कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर अपने को काम करना पड़ेगा। अगर ऐसे फ्लूइड है, चीजें है, तो हाँ उसे कैसे और रिफर्बिश करे वो ऐसे को, और उसे कैसे रिन्यू करे, वो काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल बहुत ही अच्छा है तो भाई उसको तो ऐसे की ऑनेस्टली बोलूं तो प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती बहुत सारे। जैसे मैंने भी प्रैक्टिस इस बार भी कहाँ पे मतलब लिखे मैंने, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, 5 कैसे लिखे हो गए मैंने, 5 भी नहीं,
ऐसे लिखो, इंडिविजुअल पकड़ के मैंने 4 ऐसे लिख के गया था मैं, मतलब एक एक ऐसे करके 4-5 ऐसे फुल इसमें, तो वो कोई टेंशन नहीं है भाई तुम्हारा, वो तो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। और बोलो यूपीएससी एन इंडिविजुअल एग्जाम, तो तुम्हें ना अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। इसीलिए ना जो मतलब शुभम के क्यों स्कोर कम आ रहे थे, बिकॉज शुभम वाज टेकिंग एन अप्रोच जिससे जो सब जन यूज कर रहे थे। तो शुभम को मैंने वो लास्ट अटेम्प्ट में बोला कि ये मतलब ये 2020 के अटेम्प्ट में बोला कि ये अप्रोच तुम्हें यूज नहीं करना है, दैट्स वेरी क्लियर फ्रॉम माय एंड, यू नो, एंड आई न्यू द मिस्टेक, उसने क्या मिस्टेक्स करी थी मुझे पता था, तो मैंने बोला वी विल चेंज दिस अप्रोच दिस टाइम। या Thank you, sir. या Sir, may you mention what are the probable mistakes one commits while writing essay? या कुछ मिस्टेक जो मुझे लगती है जनरली, बहुत ज्यादा डायमेंशन उसमें डालने शुरू कर देते, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट एनी कॉस्ट। एंड जस्ट वेट फॉर अ मिनट, या बहुत ज्यादा डायमेंशंस डालने शुरू कर देते, आई वुड नेवर रिकमेंड दैट। इफ यू कैन नॉट ब्लेंड इट विद द टॉपिक ऑफ द एसे, जो 4-5 जो वर्डिंग्स है यूपीएससी की, अगर वो नहीं हो रही है, नहीं करना चाहिए तुमने डायमेंशंस ज्यादा। मेरा एक ही बोलना है, गो बैक टू द बेसिक, एंड बेसिक इज दैट जो यूपीएससी ने जो दिया है 5-6 वर्ड से, वो याद रखना है इसे लिखते समय, बस वो भी करोगे तो भी डिसेंट स्कोर आएगा। Okay. Yeah guys, yeah, please ask questions man, like I will be very glad to help you out so that you don't get misguided, that's it, that's the only thing. So please ask the question as much as Sir, actually sorry that I joined the session very late as I was not aware of the timing. Right. So I missed a lot. If Right. you can just give me a small crux की किस तरह होने वाला है session and how is it going to be. I was not even aware कि one-on-one mentorship type का होगा. तो just with your conversation I realized it. तो किस तरह का हेल्प मिलेगा, अगर आप एक बार बता देंगे तो एक तो वो चीज सर। दूसरा चीज I gave only one mains and my score was 146 in the essay. तो I considered कि थोड़ा decent ही था, and I like you said I didn't give much essays, उस mains में time भी ज़्यादा नहीं मिला था मुझे, तो I just gave 4-5 essays मैंने लिखा है sort of last में वो भी। तो मेरा यही था कि कम डायमेंशंस रखूं, सिंपल रखूं, ज़्यादा कंटेम्प्रेरी या थोड़ा बहुत कनेक्ट करके रखूं अपना essay थीम से। तो किस तरह का हेल्प में आई कैन एक्सपेक्ट एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी, हाउ वो चीज अगर आप क्लैरिटी दे देंगे तो। I think you are much more at a better level, so don't play with that. If that has been working for you, please don't play with that strategy. Because क्या होता है ना कि मतलब कोई अगर 110 पे 15 पे या जिसे नहीं पता उसे हम ला सकते हैं, you are already at a good level, so I think you should not play with the strategy. Sir, actually ये बात है कि मैंने ज़्यादा I don't even know if I have a particular strategy. It was a very simple one. मैंने themes देखी, उस themes में मैंने थोड़ा बहुत research किया and I practiced. So you suggest me just go with the flow and keep practicing, ना? What I thought is that I realized if I keep practicing more, जब brainstorm करती हूँ उसी वक्त मुझे लग रहा है कि ज़्यादा work हो रहा है rather than बैठ के topic में search करने से अच्छा when I keep writing ना, हर test के बाद refine हो रहा है। तो you suggest, I thought कि every Sunday में लिखती जाऊंगी ताकि वो refine होता जाएगा। Yeah, but ऐसा है ना कि if you reach the epic of ऐसे somewhere, क्या होता है ना उसके बाद आई वुड से द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो डजंट मैटर, फिर उधर कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। तो आई जनरली फील कि यू नो इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट टू दैट लेवल, अगर 140 प्लस है तो व्हाई वुड यू प्ले विद दैट ऐसे बेसिकली। अब मेरा ये क्वेश्चन है आपको। और दूसरा ये भी है कि यू नो एक प्लेट्यू आ जाता है, वो प्लेट्यू आप इफ यू हैव हिट समवेयर, तो वो प्लेट्यू क्रॉस करना अगर 146 और कंसिस्टेंट आ गई, एक ही मेंस दिया आपने नो डाउट, अगर वो सेकंड टाइम भी आता है तो आपने जो स्ट्रेटेजी वर्क की वही करो ना, आप क्यों सेकंड इसको क्यों एक कर रहे। So this should be a decent score ना सर अभी भी, because I gave it in like 2 years back means का, तो I don't know now अभी क्या ट्रेंड। मतलब कब 2018 का। हाँ तो that was good score, very good score. Okay, that should be fine. Yeah. ठीक है, थैंक यू सर। एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी सेशन का, अगर प्लीज आई मिस्ड इट तो आइडिया नहीं है कि हाउ इज इट गोइंग टू बी। Yeah, so it's there on the Telegram channel, but we are going to take 6 essay test. And the one-on-one help I would get help. Without that, I wouldn't be conducting the session because I know, because अगर मैंने one-on-one नहीं दिया, that would be
मतलब धोखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को. Yeah, okay. हाँ. Thank you. Yeah. So guys, so we are going to conclude the session over here. Please guys, please ask any questions if you have. Please, be very free to ask the questions. So, we can just conclude. So I guess, thanks for attending the session, guys. And okay, any queries on the session, please check yeah, exactly. So please, you can always check the session on the Telegram group. Yeah, someone is actually trying to say something. Yeah. Yeah, सर बिगनर कैसे स्टार्ट करें सर एसे राइटिंग के लिए? हाँ, तो एक्चुअली अभी जो कोर्स है, मैंने तो बता दिया एक्चुअली, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, बट यू कैन ऑलवेज यू कैन ऑलवेज नेहा, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. थैंक यू वैष्णवी. सो बेसिकली कि जो जो मैंने बात बताई है, आई थिंक दैट शुड सफाइज टू यू. आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. लेट अस you can always contact the team. I can really help, will be more than happy to help you. तो वो जैसे 1-to-1 हो जाएगा, आई थिंक तुम्हें पता चल जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, इजीली हो जाएगा. सर प्रीलिम्स के लिए भी कोई मेंटरशिप प्रोग्राम होगा सर? प्रीलिम्स के लिए भी होगा. आई गेस शुभम ने बताया कि इट विल बी लाइक आफ्टर सम फ्यू मंथ्स. तो उधर भी अपन बहुत सारे मेंटल मॉडल्स यूज करने वाले हैं, और मैं गारंटी दे सकता हूँ प्रीलिम्स भी क्लियर होगी. मतलब आई हैव डन दैट, एंड आई हैव डन दैट कंसिस्टेंटली विद पीपल हु हैव बीन लाइक अराउंड, मतलब जिनकी क्लियर नहीं हो रही थी प्रीलिम 3 बार. तो हाँ, उधर भी अपन ने एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी यूज की. एनीवे, या so guys, we are ready to conclude the session. I think you just had a very delighted experience for the session. कोई बोल रहा है? Hello. Hi Shubham. Yeah, Shubham. Hello everyone. Hey guys, yeah Shubham. I thought I could just join it for a minute. So how was it? I hope everybody got benefited. Shubham, you were not audible. You are not audible, sir. You have to come into a reachable area where the network is good. Okay. Now you can repeat again. No issues. Hello. Yeah, you can repeat Yes. again. Am I audible? Am I Yes, audible sir. now? Yeah, you are. Yes. Yeah. Yeah. So everybody got benefited of the session. Yes, sir. Mr. Madhusudan Yes, sir. actually mentored me for essay, and he has been a great help for me. So that is why I brought him for you all, and you can rely on him. I have been with him. I am in transit. I am going somewhere. That is why I am unable to be in connection. But that's it. I wanted to say this. Yeah. Thanks, Shubham. Thanks for the consent. So, guys, we are ready. Okay. Okay, everyone. Thank you, Shubham. So, if you have any queries, please. Thank you, Amruta. Thank you, Anvaran. So, if you have any queries, please put up on the Telegram channel. They will be more than happy to help. Just contact the guys over there. Okay, guys. Then bye. Have a happy journey in this UPSC preparation. Do your best, and please do not get misguided. Be very concise. थोड़ी notes बनाओ, अच्छी चीजें करो, अच्छी strategy रखो, थोड़े अच्छे guidance रखो. Guaranteed crack होगा exam. जो हमने गलतियां की वो आप मत करो, बस. सर, चलो then. Sir, Bye guys. सर आप मिस्टेक्स बता सकते हैं जो आप लोगों ने की जिस वजह से? हाँ, मैं वो बताऊंगा मैं आपको जरूर. बट at this moment I think I'm running out of time. So we'll just arrange a session for that. No issues. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, chalo. Thank you so much. Yep. Thank you, sir. Thank you, Suraj. Thank you, sir. Thank you, Rahul. सर आपने इस साल का प्रीलिम्स दिया था सर? नहीं, इस साल का मैंने स्किप किया था. मेरी जॉब भी चल रही है साथ में, तो नहीं हो पा रहा. So yeah.
Thank you, sir. Yeah, thank you, Manjit. Thank you so much.